Hi Shubhankar, welcome on Europedia. Yeah, thank you. Thank you And for having Shubhankar, me. yeah, so you are pursuing your master's in biomedical, and you are from electrical background. You are pursuing it from very prestigious IIT BHU. And I'll be interacting with you today to know more about this particular program course and your journey post GATE and your background. So please tell us, Shubhankar, which part of India you are from and आपका BTech कहाँ से हुआ है, which college, and what was your GATE score, GATE journey, and GATE के बाद आपकी क्या क्या opportunities explore हुई थी आपके पास? Okay. So मेरा BTech, I'm from Nagpur, Maharashtra. I did my BTech from Raisoni College of Engineering. It's a private college in Nagpur. I did my BTech in electrical engineering, Mm-hmm. and then I worked for almost 2.5 years in a data analytics company. And then I gave GATE computer science, and I got a GATE score of 460. Mm-hmm. And with that, I applied to a bunch of places. I also got shortlisted for a PhD in IIT Bombay for their industrial engineering program, and I was there till the last round, but that didn't happen. I didn't get selected in the final place, and Mm-hmm. other than that, this was one of the best opportunities I got. Biomedical engineering at IIT BHU. Okay, so Shubhankar, you are computer science background and sorry, electrical background, and then you wrote with GATE with the DA, right? CSE, computer See, science. okay, so you have written GATE with computer science. Yes, Okay, so the reason for that was your job experience, right? yes. It was job experience. Those things were much more fresh on my mind. And anyway, Uh-huh. I had prepared a little bit of DSA for job. Mm-hmm. So I was like, "Ki, this makes sense to rather than starting everything over. This seemed like an easier option." Okay, so no, but your BTech is in electrical, and though you Yes. have written it with computer science, I would like to ask you, Shubhankar, were you eligible for most of the courses where computer graduates were also eligible? Uh, I would say yes, like basic computer science programs everywhere, MS, MTech, most of them I was open for. I was Mm-hmm. eligible for, I would Okay. say. Uh, Mm-hmm. I would say if you give DA, then I think if you give GATE DA, then a lot Mm-hmm. of options are reduced because one of my friend did that and Yes. his options were considerably less than mine. And I Yes. think somehow colleges also have some quota or somewhere where they prefer gates like we get like call for interview or even ultimately getting a seat. They prefer, I think, more gate CAC than gate DA. अच्छा, मैं आपसे शुभंकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और क्योंकि बहुत से बच्चे कंप्यूटर साइंस में ही इंजीनियरिंग कर रहे थे काफी साल से, एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग गेट नाउअडेज इज फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड। एंड कंप्यूटर साइंस में गेट्स को बहुत ऊपर चला जाता है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द कोर ब्रांचेस। And I'm going to suggest students some courses where not very high gate score is required to enter maybe. So can you tell me, like somebody who's from computer science background or who has written with computer science gate, या उसके पास अदर देन कंप्यूटर साइंस एआई जो कोर ब्रांचेस होती हैं जो हम बोलते हैं कि तो मेन ब्रांचेस उससे रिलेटेड हैं, और कौन कौन सी ऑप्शंस उसके पास हो सकती हैं? हम्म, जैसे बाकी कॉलेजेस का मुझे बहुत आइडिया नहीं है बट आईआईटी बॉम्बे का आई वुड डेफिनेटली से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला जो ब्रांच है दैट इज आई थिंक यू आर एलिजिबल इवन आई इफ यू गिव मैनेजमेंट गेट। एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सारा। हाँ, वो एक बढ़िया चीज है। आईआईटी बीएचयू में मैं तो हाईली डिसीजन रिकमेंड साइंस। करूंगा डिसीजन साइंस। हाँ, यस। इन डिसीजन आईटी साइंस बीएचयू को कंप्यूटर साइंस गाइज आर एलिजिबल। हाँ, कंप्यूटर साइंस एंड रिसेंटली उनको आई गेस 17 to 18 crore का आई गेस फंडिंग वगैरह भी मिला है तो उनकी बिल्डिंग बन रही है और उनका रिसेंट प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा था। जो ओके। एम टेक बैच का था तो ओके। इट इज बेटर देन बायोमेडिकल प्लेसमेंट वाइज। ओके। एंड अदर देन बायोमेडिकल ऑल्सो, लाइक ये जैसे एनर्जी, ये अर्थ अर्थ साइंस होता है, क्लाइमेट साइंस होता है, इसमें भी तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले लोग जा सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी है ये। हाँ, आई गेस आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह वो साइड जा सकते हैं
बट हम्म अगेन मुझे बहुत आइडिया नहीं है कि उसके बाद क्या हम्म अपॉर्चुनिटीज खुलती है अच्छा, इसमें। ये बायोमेट हाँ, बायो प्लीज गो जैसे अहेड। इस बार जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, तो उसमें अनदर स्पेशलाइजेशन भी है जो बहुत कम लोगों को पता रहता है, आईआईटी बीएचयू का बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही मेडिकल डिवाइसेस का। ओके। तो हम्म। उसमें मतलब कैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 50-50 स्प्लिट रहता है कि जहाँ पे सिलेक्ट करते हो कि वो प्रेफर करते हैं 50% बायोटेक बैकग्राउंड से और 50% इंजीनियरिंग से। बट हम्म मेडिकल डिवाइसेस वाले स्पेशलाइजेशन में दे प्रेफर इंजीनियरिंग साइड की, और वहां पे भी गेट सीएससी वालों को काफी आई हम्म वुड से जैसे मेडिकल इमेजिंग डिजिटल है। हम्म ओके ओके, सो दैट मीन्स बायोमेडिकल जो डिवाइसेस है, डिवाइसेस वाली डोमेन जो है वो पूरी इंजीनियर्स के लिए है। हाँ हाँ, पूरी इंजीनियर्स के लिए। और मतलब हमको सीनियर्स और कुछ एचआर लोगों से भी बात की, तो उन्होंने भी ऐसा सॉर्ट ऑफ फीडबैक दिया कि अगर उनको रेज्यूमे में दिखता है कि विद स्पेशल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बट स्पेशलाइजेशन तुम्हारा मेडिकल डिवाइसेस है, तो दे ओके। वुड प्रेफर दैट ओवर प्लेन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यस। ओके, इंडस्ट्री एंड में। शुभंकर, okay, so please tell us, in which round of COPE did you get biomedical in ITBHU? मुझे फोर्थ राउंड में। तो उससे पहले कुछ था आपके पास? नहीं नहीं था, दिस वाज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड यू तो आई वेंट डिडंट फ्रॉम। वेट। ओके, तो आपने इसको फ्रीज कर दिया। हाँ, मैंने फ्रीज कर दिया। ओके, एंड एनी इसके अदर अलावा ऑप्शन विच यू? हाँ। इसके अलावा मतलब तब जब ये राउंड चल रहे थे एनआईटीज के राउंड चल रहे थे तब, तो सीसीएमटी के? सीसीएमटी में मुझे मेरे को डीआईआईटी से मिल रहा था। बट हम्म फिर मतलब फिर आई डेंट, बाद का भी उसमें आई डेंट परस्यू व्हेन आई गॉट आईआईटी बीएचयू का फोर्थ इसमें। ओके, सो यू डिड यू ट्राई फॉर एमएस प्रोग्राम्स आल्सो? एमएस प्रोग्राम्स के लिए आई डिड ट्राई बट नॉट दैट मच आई वुड से। Okay. Otherwise, what do you think? Is MS also a very good option? Yes, definitely. मेरे मतलब my brother did his MS from IIT Madras, हम्म same biomedical engineering. So yeah, it's a very good opportunity. बस ये होता है कि उसमें इंटरव्यूज वगैरह होते हैं शुभंकर, तो अगर कैंडिडेट्स उसकी तैयारी Hmm. करके जाएं तो दे कैन एक्सप्लोर मेनी अदर ऑप्शंस आल्सो। Yes, yes. अच्छा शुभंकर, एनी पर्टिकुलर पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑल द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जो अभी गेट एग्जाम के बाद सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, 2-3 मंथ्स अगला उसमें हेक्टिक होता है कि कहाँ पे उठाएं क्या करें, तो कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस? आई गेस सर, मतलब मैं आपका ही एडवाइस रिपीट करूंगा। आप हमेशा बोलते रहते हो कि अप्लाई करते रहो, अप्लाई करते रहो, अप्लाई करते रहो, एंड यू नेवर नो कहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने यस। भी यहीं पे ऐसे ही अप्लाई किया था। मेरा इंटरव्यू भी मेरे को लगा था बहुत अच्छा नहीं गया है, बट स्टिल आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हियर। एंड ऐसा मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का, मेरे जो दोस्त है उनका भी एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे जगहों पे अप्लाई करना चाहिए, कि भले ही हमको खुद को लगता है कि स्कोर कम है, कोई कहीं कुछ होगा नहीं, बट हाँ, होता है। सरप्राइजिंगली काफी बार हो जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं एडवाइस स्टूडेंट्स को दूंगा थ्रू दिस इंटरेक्शन, दैट इज कि आप जैसे गेट एग्जाम होता है, टेक अ ब्रेक ऑफ अ वीक में बी, बट आफ्टर दैट डोंट लूज टच विद स्टडीज। वाई? बिकॉज हम्म। अगर इंटरव्यू आता है, एमटेक हो चाहे एमएस हो, आपका इंटरव्यू कॉल आता है और इंटरव्यू आएगा तो आप तभी निकाल पाएंगे अगर आप तैयारी किया होगा। नंबर टू, हिडन अपॉर्चुनिटीज होती हैं और आप को थोड़ा सा एक्टिव होकर रहना पड़ता है, जहां कई बार जाना पड़े वहां जाओ, इंटरव्यू जरूर दो, और जहां हम्म। ऑफलाइन इंटरव्यू में अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां जरूर जाओ, बिकॉज वहां पे कंपटीशन आजकल कम होता है, बिकॉज नॉट मेनी हम्म। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर थ्रू इंटरव्यू, वो भी करना चाहिए। एंड आप अगर जैसे एमएस है, एमएस कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, मैं पर्सनली एमएस कोर्सेज को इसलिए प्रेफर करता हूँ बिकॉज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होता है एमएस, मतलब एमटेक हम्म। एमई समथिंग विच इज इंडिया स्पेसिफिक, एमटेक बाहर हम्म। होता ही नहीं है, वो एमएस होता है। लेकिन अगर आपने एमएस रिसर्च प्रोग्राम किया है तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होता है और आपको अपॉर्चुनिटी भी होती है कि 6 महीने ज्यादा काम करके आईटी हाँ। सिस्टम जैसे सिस्टम में बैठ के आप एक बहुत अच्छा रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो लॉन्ग टर्म में
स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करती हैं शुभंकर। एंड एज अ टीचर, एज अ मेंटर, आई वुड लाइक के स्टूडेंट्स इन चीजों पे फोकस करें और अगले 2-3 मंथ्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। तो शुभंकर, with that, we bring this session to an end. I thank you once again for your time and wish you all the very Thank you, best for sir. your master's program ahead. Thank you. Thank you.